हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। आशा करते हैं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज की इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BFM मॉड्यूल डी यूनिट नंबर 30 विच इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सो लिक्विडिटी मैनेजमेंट basically, right? So in our previous session we generally talk about asset classification and provisioning norms. So today is the discussion is around liquidity management. Okay, so that insolvency and liquidity, a balance between these two, and what are the challenges and what measures bank can take to tackle this particular situation that we are going to discuss in this particular session, right? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फ्रॉम मॉड्यूल डी एंड कहीं ना कहीं इसका जो रेफरेंस है वो आपको मॉड्यूल बी से भी मिलेगा। ठीक है, सो मॉड्यूल बी वेयर वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, the entire framework or the areas like liquidity principles released by BCBS. There were 13 principles and as well as RBI guidelines on liquidity management. तो अगर आपने मॉड्यूल बी अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे आपको ज्यादा चैलेंजेस नहीं आने वाले। ठीक है, तो गाइज this is the course content: basic introduction, definition, dimension and role of liquidity management, and the final one is measuring and managing liquidity risk, where we have stock approach as well as फ्लो अप्रोच। ठीक है, तो ये दो अप्रोचेज आपका जो यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इट इज all about create a balance between like every bank they generally want to achieve a situation that is called solvency as well as liquidity, but liquidity is the primary goal if you have to opt out of these two, right? So liquidity means when bank they are able to meet their short term obligation, and liquidity risk is basically when they won't be able to meet their शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो कस्टमर्स के जो डिपॉजिट्स हैं व्हेन दे लाइक ईदर इट इज डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, तो जब वो आपका विड्रॉ का रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, सो वी हैव टू फुलफिल देयर रिक्वेस्ट ऑन टाइम। ठीक है, अगर वो चीज नहीं होगा सो इट विल लीड टू मल्टीपल लॉसेस टू द बैंक। इट कैन बी लाइक आपका due to liquidity risk, bank they can face like funding risk or reputation risk or even the regulatory compliances and all, right? So बहुत ही important aspect है आपका जिसको आपको ध्यान रखना है। The objective of asset liability management ALM are twofold. One is ensuring profitability, another one is ensuring liquidity. Liquidity which is represented by the quality and marketability of assets and liabilities expose the organizations to liquidity risk. Unlike other risk like interest rate risk, market risk, operational and technological risk, and foreign exchange risk that can be threaten the very solvency of the bank, liquidity risk is a normal aspect of everyday's management of the financial institution, which we already covered in our treasury management also. ठीक है, so treasury is the department who generally help us in ALM, और कहीं ना कहीं उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि इफ वी हैव सम काइंड ऑफ शॉर्टफॉल और सरप्लस, to make a proper arrangement for that shortfall as well as that surplus, that is generally done by the treasury department in our bank. ठीक है, तो आप ये कहीं ना कहीं like we can say to achieve bank goal of the solvency, that is समवेयर लिंक विद द लिक्विडिटी, जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल तरीके से आपका उस चीजों को रख रहा होता है। ठीक है, सो एक दूसरे को ये अफेक्ट करते हैं डेफिनेटली। ठीक है, और कहीं ना कहीं like I hope you remember that ratios like LCR, NSFR, ठीक है, liquidity coverage ratio, net stable funding ratio. So these are some aspects जो हमें liquidity आपका बैंक के proper manage करने में help करते हैं। ठीक है, so LCR is usually for the stressful situation, and NSFR which is like up to 1 year, that generally help bank to manage their overall liquidity sources and आपका application of funds। ठीक है, so banks need a liquidity to meet deposit withdrawals and to fund loan demands. The variability
of loan demand and the variability of deposit determine a bank liquidity needs. Okay, so basically these are the four situations where bank generally lies. Okay, so both this is the both solvent and liquid. अगर इस situation में है, that means there is a best management between best management of their ALM, asset liability management. Liquid but not solvent. There are most of banks, they generally have this particular structure. Solvent but not liquid. Not liquid, this is means बैंक आपका प्रॉफिट में है बट लिक्विड आपका लिक्विडिटी जो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट है दैट इज पुअर. दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन. ठीक है, और ये तो सबसे ज्यादा डेंजरस है आपका. ठीक है, ना तो आप प्रॉफिट में है और ना ही आप क्या है लिक्विड है. ठीक है, सो दैट इज द वन. सो दीज आर द फोर डिफरेंट स्टेजेस. बैंक बट बैंक दे जनरली ट्राई टू अचीव दैट solvency as well as liquidity. ठीक है, so liquidity represent the ability to accommodate the decrease in liability and to fund the increase in assets. A bank has adequate liquidity when it can obtain sufficient funds either by increasing liability or by covering assets promptly and at a reasonable cost itself, right? So कहीं ना कहीं liquidity management is very very important for our bank. ठीक है, for our day to day operation or to meet up with our day to day obligations of the bank itself, right? So effective liquidity management by a bank serve the following important purpose. So this is a very important area. Please try to remember these liners. ठीक है, पहला, it demonstrates the marketplace that the bank is safe and therefore capable of repaying its borrowings. It enables bank to meet its prior loan commitments, whether the formal or informal. It enables the bank to avoid unprofitable sale of assets. So it enables bank to avoid unprofitable sale of asset. This function permit the bank to avoid sale of asset at fire sale prices, so opposed to going concern values to generate funds. And the final one is it lower the size of the default risk premium the bank must pay for the fund itself. ठीक है, तो देखो like let's say I hope you remember that NII, ठीक है, net interest income. So net interest income is basically inflow minus outflow, right? So अब जैसे it is somewhere like let's say the core business is borrowing for the purpose of lending. ठीक है, तो अगर हमने किसी कस्टमर से आपका लोन ले रखा है, सपोज दैट 1 करोड़ रुपीज डिपॉजिट लाइबिलिटी ले रखी है, ठीक है, एंड इट इज फॉर 1 ईयर. ठीक है, इट इज फॉर 1 ईयर. So that means it is payable at the end of first year. ठीक है, and with the same amount we generally created an asset for let's say for 5 years. हमने इससे आपका किसी को लोन दिया and we have some prior assets जिनका मेच्योरिटी आपका इसके कंप्लीशन के साथ होने वाला है. ठीक है, सो अगर आपका वो प्रॉपरली होता है, जैसे कोई अदर, जैसे दिस इज एसेट ए, देयर इज वन एसेट बी विच इज गोइंग टू मैच्योर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. तो हमने प्लान किया कि जैसे ये मैच्योर होगा तो इससे हम इसको पे कर देंगे और ये हम आपका अगले 5 साल तक लैंडिंग कर रहे होते. ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर ये प्रॉपरली आपका if there is any not any non-performance in all, ठीक है, so we will be able to meet that particular things. जो हमारा फंडिंग सोर्स है इसके लिए वो करेक्ट रहेगा. बट अगर वो डिफॉल्ट होगा तो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम होगी. सो अब ऐसा तो है नहीं कि हम कस्टमर का पैसा नहीं देंगे. सो वी हैव टू अरेंज दैट पर्टिकुलर फंड्स. हम किसी एसेट को आपका लिक्विडेट करेंगे या फिर आपका कहीं और मार्केट से फंड रेज करके इसको देंगे. सो दैट विल क्रिएट, अगर प्रॉपर मैनेज होगा सो दैट इज गुड, अगर नहीं होगा सो इट इज अ फंडिंग रिस्क. ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा, एक फंडिंग रिस्क आएगा. ठीक है, सो फंडिंग रिस्क आपका एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. ठीक है, हो सकता है उसके लिए आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पे करना पड़े कंपेयर टू योर सोर्सेज. तो ऐसे आपकी जो चैलेंजेस रहेंगे. ठीक है, सो दैट प्रॉपर मैनेजमेंट, इफ यू हैव द प्रॉपर ALM मैनेजमेंट, सो यू आर गोइंग टू बेनिफिटेड इन दीज पर्टिकुलर वेज. तो ये आपके बेनिफिशंस आपके होंगे कहीं ना कहीं, जो बैंक जिनको आपका कहीं ना कहीं जिनका फायदा उठा पाएगा. ठीक है, सो अगेन दिस लाइन आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, so adequacy of bank liquidity position depend upon an analysis of the following factors. So these are the factors on which bank liquidity is mostly depend upon, right? First one is funding requirement, historical funding requirements. ठीक है, कब कब आपका पैसे का रिक्वायरमेंट है. So NSFR will help you out
for 1 year. Then current liquidity position. What is the current liquidity position of the bank after making an analysis? Anticipated future funding needs. कब कब कितना कितना पैसे का requirement होगा, and what will be the source by which we are going to fulfill that requirement, right? Sources of fund जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है. Option for reducing funding needs आपका. Then we have present and anticipated asset quality. Then present and future earning capacity, present and planned capital position. So these are the key parameters which are generally like bank, they need to do analysis on these particular areas to judge their current liquidity position and how they are going to meet their short term or up to 1 year debt obligations, and how they are going to make a proper arrangement between that particular one. So that is we generally do through these particular areas आपका, ठीक है. I hope this is clear, very simple one, ठीक है. तो अगर आपने मॉड्यूल बी अच्छे से पढ़ा है तो ये बहुत आसान होने वाला है, बिलीव मी. इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ स्टडी वाइज मॉड्यूल ए एंड बी. आई ऑलवेज सेड दिस, ठीक है. दैट इज लाइक दैट जनरली प्ले अराउंड 60 to 65%. वो अच्छे से पढ़ लिया, उतना तैयारी हो गया. मार्क्स वाइज वी हैव इक्वल डिविजन, मार्क्स वाइज ऐसा कोई भी सेग्रीगेशन नहीं है. बट हाँ, स्टडी वाइज आपका वहां पे फोकस करो बढ़िया से. नया नया जोश रहता है स्टार्टिंग में आपका मॉड्यूल ए बी में, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है. यहाँ आता है दैट्स कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है. तो थोड़ा सा लो हो जाता तो वो लो नहीं. और एक और चीज मैं आपको बोलूंगा अभी भी ना, लाइक व्हाट आई एम फीलिंग कि कैंडिडेट दे जस्ट आर बॉदर अबाउट दी एमसीक्यूज, ठीक है. क्या करोगे यार उन एमसीक्यूज का? आप ऐसा तो है नहीं कि वट एवर वी विल प्रिपेयर दैट विल बी पार्ट ऑफ योर एग्जाम, ठीक है. वो रेप्लिका नहीं हो सकती, ठीक है. IIBF दे विल डू देयर जॉब इन अ बेस्ट वे, ठीक है. तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर कोई चैलेंज नहीं होगा, बिलीव मी गाइस, ठीक है. तो हर सब्जेक्ट के साथ ये अप्रोच रखिए, बहुत फायदेमंद रहेगी. सो द फैक्टर मे अफेक्ट बैंक लिक्विडिटी include. So again, this is very important one. So what are the key factors which are going to make an impact, adverse impact on bank liquidity? पहला, decline in earnings. अगर आपका लिक्विडिटी कम होगा, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो अगर आपका शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट नहीं है, सो यू हैव टू प्रीमेच्योर योर एसेट, जहां पे आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है, या आपको हाई रेट पे आपका फंडिंग अवेलेबल कराना होगा. दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक एन नेगेटिव इम्पैक्ट on your NII as well as NIM, ठीक है. An increase in non-performing assets आपका, this again a negative effect है. Deposit concentration, हाँ, जो sources of funds हैं, like if it is limited to a particular group, especially that corporate houses in wholesale, तो like retail they generally help us in diversification. अगर retail का participation कम है, that means there is a concentration risk, तो वो आपके लिए चैलेंज हो सकता है. डाउनग्रेडिंग बाय रेटिंग एजेंसीज, दिस इज अबाउट द एग्जिस्टिंग लोन, ठीक है. जैसे आपके कोई एग्जिस्टिंग लोन है, कस्टमर्स हैं जिनको आपने लोन दिया है, अगर उनकी क्रेडिट वर्थिनेस पुअर हो रही है, दैट मीन्स देयर इज some weakness in their credit worthiness or their financial health, that means there is a high probability of default in near future, right? Expand a business opportunities, expanded business opportunities, acquisitions or new tech initiatives, ठीक है. तो इसका मतलब like we cannot do anything for this one, ठीक है. तो ये भी आपके उस पे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा. So these are some factors which may affect a bank liquidity in an adverse manner. So bank they generally have to take care about these particular things. Okay, chalo. So type of liquidity risk. So if we talk about the liquidity risk, basically we have like these numerous risks can be categorized among three parts. One is funding risk, another one is call risk, and third one is funding, call, and that time risk, or I just missed that one. Okay, we'll come to that one. I just want to see. Time risk. It was fine. Okay. So liquidity exposure can stem from both internally institution specific or externally generated factors. अब ये आपको याद होना चाहिए था, ठीक है. इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब हमने पढ़े थे ना. इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, विच इज इन द हैंड ऑफ बैंक इटसेल्फ. जैसे इंटरनल फैक्टर क्या हो सकता है लिक्विडिटी रिस्क के लिए, रैपिड एसेट क्रिएशन. हमने डिपॉजिट लिया, लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करते गए, ठीक है. दैट इज द चैलेंज, ठीक है. या फिर आपका जो कहीं ना कहीं जो एसेट क्वालिटी है दैट इज वेरी वीक, तो दैट मीन्स वी आर नॉट डूइंग द प्रॉपर
alarm things and all. So that is internal. External is kind of economic shock or sector wise problems. Concentration is internal. External is like economic shock, inflation और other kind of situation. ठीक है, तो ये सब आपका, ये इनका पूरा लिस्ट हमने पढ़ा था मॉड्यूल बी के अंदर. That list is very very important for this one. ठीक है, so external liquidity risk can be geographic, systemic and और इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक. ठीक है, ज्योग्राफिक मींस जैसे इकोनॉमी वाइज आपका शट डाउन चल रहा है, स्लो डाउन चल रहा है. ठीक है, सिचुएशन लाइक कोविड-19. सिस्टेमिक इज लाइक बेसिकली दे आर लाइक दैट systemic is kind of that Lehman Brothers bank situation, global financial crisis, failure of one bank lead to multiple bank. They created a ripple effect in the market. So उसकी वजह से. ठीक है, instrument specific can be like we have maximum investment in let's say we have some derivative position in all, वहां पे कुछ गड़बड़ चला, इक्विटी में कुछ गड़बड़ चला in all, that is the one. Internal liquidity risk relate largely to presentation of an institution in its various market like local, regional and others. So these kind of areas or investment made by the bank like concentration or the kind of concentration हो सकता है आपका रैपिड एसेट क्रिएशन. तो अराउंड 10 लाइन का हमने एक लिस्ट पढ़ा था. दैट लिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, सो दीज आर फर्दर कैटेगराइज अमंग 3 पार्ट. वन इज फंडिंग, another one is time risk and third one is call risk. Okay, so funding risk, if I summarize these particular one, we will go in detail also with examples. Okay, the funding risk is basically, as I told you earlier also, so borrowing and lending. Okay, this is our core business. Okay, so let's say we borrow 10 crore rupees, we took a deposit or took a liability of 10 crore rupees for let's say for 2 years. ठीक है, so एक FD हमारे पास खुला 10 करोड़ रुपए का. ठीक है, एट द रेट ऑफ लेट्स से 7% पर एनम. ठीक है, एंड विद दिस पर्टिकुलर वन वी क्रिएटेड एन एसेट ऑफ रुपीज 10 करोड़, सपोज दैट एट द रेट ऑफ सपोज दैट 12% पर एनम. ठीक है, सो आर NII इज हाउ मच, आपका 5% और 500 बेसिस पॉइंट. ठीक है, सो योर NII नेट इंटरेस्ट इनकम इज 10. ठीक है, सो सपोज दैट वी हैव क्रिएटेड दिस एसेट फॉर 5 years. ठीक है, 5 साल के लिए हमने आपका किया. सो देर इज अ गैप. ठीक है, यहां पे क्या है, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच है एंड देर इज अ मेच्योरिटी मिसमैच इन दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, सो एट द टाइम व्हेन वी क्रिएटेड दिस एसेट वी हैव सम अदर like other assets which will get mature at the end of second year. ठीक है, तो हमने पास्ट में कोई एसेट क्रिएट किया था किसी कस्टमर के साथ, तो वो आपका मैच्योर होने वाला है 2 साल के एंड में. तो हमने ये प्लान किया कि वहां से जो पैसा आएगा वो हम इस कस्टमर को आपका पे कर देंगे. जनरल ऐसे ही होता है. या फिर हमें ये उम्मीद है कि यही कस्टमर इस अमाउंट को दोबारा से हमारे उसमें आपका क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा. सो दैट इज आवर सोर्स ऑफ फंड. अब अगर सोर्स ऑफ फंड में गड़बड़ हो गया, दैट मीन्स लेट्स से कि इसने बोला यार मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं, या फिर जो एसेट हमने प्लान किया था इसके लिए वो आपका नॉन परफॉर्मेंस हो गया, या अदर ऐसा कोई भी चैलेंजेस, तो दैट इज जनरली नोन एज फंडिंग रिस्क. ठीक है, तो जहां पे हम प्रॉपर फंडिंग आपका नहीं कर पा रहे. ठीक है, सोर्स आपका प्रॉब्लम है. दूसरा इज टाइम रिस्क. सो टाइम रिस्क इज बेसिकली time risk is time risk is related to your okay, I need to check this. Call risk is related to, call risk आपका it is linked with your kind of जैसे आपका LC है, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, या आपका कंटिजेंट लाइबिलिटीज. सो व्हेन दैट कंटिजेंसी अकर, ठीक है, तो वो आपका ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड आपका होता है, कॉल रिस्क से रिलेटेड होता है. ठीक है, सो वी विल गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन बाय वन. सो नीड टू रिप्लेस नेट आउटफ्लो ड्यू टू unanticipated withdrawals, premature closure of deposit or non-renewal of deposit, wholesale and retail arise due to आपका जैसे fraud causes substantial losses, systemic risk, loss of confidence, liabilities in foreign currencies. एक और रीजन जो यहाँ पे स्पेसिफिकली हाईलाइट किया गया फॉर दिस पर्टिकुलर वन इज योर एम्बेडेड ऑप्शन. एम्बेडेड ऑप्शन इज बेसिकली जैसे कस्टमर को हमने एफडी करा रखा है 10 करोड़ रुपीस का आपका एट द रेट ऑफ 7%. ठीक है, सो लेट्स से आफ्टर 6 months दिस कस्टमर गॉट एन अदर like there are some rate increment in this, it become 9% after 1 year suppose that. So what he will do, ये दो चीजें आपका करेगा, या तो इसको
बोलेगा प्री मेच्योर करके मेरे इस डिपॉजिट को यहां से यहां शिफ्ट करो, वो भी आपका एनआईआई पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। दूसरा ये हो सकता है आपका विड्रॉ करके अगर किसी और मार्केट में डालना चाहता है, ठीक है। एम्बेडेड ऑप्शन इज बेसिकली व्हेन देयर इज अ राइट गिवन टू द कस्टमर ऑफ प्री मेच्योर और विद प्री विड्रॉल्स और प्री पेमेंट्स, जैसे लोन के केस में भी आपका ये होता है, ठीक है। तो दैट इज द सिचुएशन। अब ये किसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, जैसे आपका बैंकिंग सिस्टम में कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई सिस्टेमिक रिस्क मार्केट में है, या फिर आपका कॉन्फिडेंस आपका, ठीक है, अगेन रिलेटेड टू द रेपुटेशन ऑफ द बैंक और बैंकिंग सिस्टम, और लाइबिलिटीज इन फॉरेन करेंसीज इटसेल्फ, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज आपका जो फंडिंग रिस्क के लिए हो सकते हैं। टाइम रिस्क इज बेसिकली नीड टू compensate for non-receipt of expected inflow of funds arise to this. तो what is your time risk? It is linked with our situation, ठीक है, कि हमने प्लान किया था, let's say we have given loan to Mr. X, ठीक है, आपका वर्थ लाइक एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर वी आर गोइंग टू रिसीव 10 करोड़ रुपीज, ठीक है, हम रिसीव करने वाले थे। तो फिर हमने आपका मिस्टर वाई से एक डिपॉजिट लिया 10 करोड़ का एंड वी क्रिएटेड दिस एसेट। हमें उम्मीद क्या थी कि आपका ये जो एक्स है इससे 2 साल के एंड में हमें 10 करोड़ रुपीज मिलेगा, बट इसने डिफॉल्ट कर दिया आपका, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक टाइम गैप आएगा, उस मेच्योरिटी पे हमें अमाउंट नहीं मिल पा रहा है, सो वी हैव टू गो फॉर सम अदर काइंड ऑफ अरेंजमेंट इन ऑल। तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा है दैट इज आपका टाइम रिस्क, ठीक है। सो सर्व डिट्रॉइशन इन दी एसेट क्वालिटी, इट कैन बी स्टैंडर्ड एसेट टर्निंग इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे मिस्टर एक्स का केस था, और बोरोवर्स डिफॉल्टिंग टू रीपे एज पर द टर्म ऑफ रीपेमेंट्स, टेम्परेरी प्रॉब्लम इन रिकवरी, or time involved in managing liquidity. So these are the scenarios which generally lead to the time risk, ठीक है। Final category is call risk, ठीक है। So call is something linked with the when the other party they generally executed their call in that particular asset, ठीक है। तो जैसे आपका contingency and all, ठीक है। So crystallization of contingent liabilities and inability to undertake profitable business opportunities when desirable, so they are generally known as same call risk। जैसे आपका conversion of non fund based limit into fund based, स्वैप एंड ऑप्शंस, सो ये आपके जो कहीं ना कहीं रीजन हो सकते हैं फॉर योर कॉल रिस्क। तो लिक्विडिटी रिस्क आपका विच जनरली लिंक विद दीज डिफरेंट एरियाज, ठीक है। अब अगली चीज जो हमारे पास है, नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, that is the measuring and management of liquidity risk. So for measuring we have two approaches of liquidity risk. One is stock approach, which is full of formulas, and another one is flow approach, right? So आपका measuring and management, okay? So the following steps are necessary for managing liquidity risk. First, these are the three as per your Macmillan book itself. Exact. प्लीज डू रिमेंबर दीज थिंग, ठीक है। ये आपको सेम लाइन है आपका, जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। डेवलपिंग और स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, सो यू बैंक दे नीड टू प्रिपेयर देयर ओन स्ट्रक्चर टू मैनेज और टू डील विद दीज दोज काइंड ऑफ प्रीवियस सिचुएशन। सेटिंग टॉलरेंस लेवल एंड लिमिट फॉर लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। सो टॉलरेंस इज बेसिकली लाइक जो काइंड ऑफ जिसके बेसिस पे हम स्टॉप लॉसेज ज्यादा करते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी कि कितना तक का आपका कैपेसिटी है बैंक का। So accordingly, we have to decide our exposures also, right? Measuring and managing liquidity risk. So these are three areas. The first one is developing structure for ALM. Okay. So RBI had issued guidelines on ALM system covering inter alia liquidity management system in February 1999 and 2007. Successful implementation of any risk management process has to emanate from the top management, means board of directors in the bank, with the demonstration of its strong commitment to integrate basic operation and strategic decision making with the risk management. अब ये आपको अगर याद आ रहा होगा ना, 1-1.5 महीने पहले जब मैं आपको पढ़ाया करता था यूनिट वाइज आपका मॉड्यूल बी में जब हम लोग थे, या अगर आपने वो मॉड्यूल बी का कंपाइलेशन देखा होगा, तो वहां पे लाइक for any kind of losses which is borne by the bank, who will responsible? Their top management. Top management means board of directors, ठीक है। That means every process policy that should be part of the board driven policy, ठीक है। So that should be taken care by, or that should be tested by their board of directors and all, ठीक है।
सो फॉर दैट वन वी नीड अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आई होप याद होगा सबको, ठीक है। तो कैसे था आपका, सो जैसे आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडीज आपका सबसे ऊपर, ठीक है। देन वी हैव एएलएम या एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट या एल्को जिसको हम लोग बोलते थे, ठीक है। देन वी हैव रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, अंडर दिस वी हैव लाइक liquidity risk management committee, under liquidity risk management committee we have support groups and departments, ठीक है। तो ये कुछ आपके जो एरियाज आपके थे इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे यहां पे भी आपका बना हुआ है, सो गवर्नेंस ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, एल्को एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी एंड एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप। सो दिस इज योर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर लिक्विडिटी रिस्क, ओके। तो ये हमने बहुत बार वहां पे बहुत बार अच्छे से ढंग से हर एक, जैसे आपका व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इन केस ऑफ लिक्विडिटी रिस्क, वो हमने पढ़ा, या क्रेडिट रिस्क में क्या होगा, ऑपरेशनल रिस्क में क्या होगा, वो सारी चीजें अलग अलग तरीके से। दो आई एम गोइंग टू रिवाइज दैट पर्टिकुलर वन, बट ये पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से पढ़ो, हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके जो एरियाज हैं जो कहीं ना कहीं इसके हिसाब से आपका बनते हैं, ठीक है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड हैव ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। द बोर्ड शुड डिसाइड स्ट्रेटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स of the bank to manage liquidity risk in accordance with the liquidity risk tolerance and the limits, and which is again part of the board approval policy। तो पहला तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो, बैंक की खुद की अपनी पॉलिसीज हो, उनके रिगार्डिंग प्रोसीजर्स हो, ठीक है। दीज शुड बी क्लियरली आर्टिकुलेटेड बाय द बोर्ड टू दी आपका जो आपका रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, अदर्स उनको, ठीक है। एंड वी हैव सम डिफाइंड टॉलरेंस लिमिट्स इन ऑल, सो उनका आपका प्रॉपर पालन हो, ठीक है। एंड दीज लिमिट्स इन ऑल दे शुड बी एग्जैक्ट इन नंबर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कोई आपका इतना नहीं, मतलब नंबर्स मींस अ सर्टेन परसेंटेज लिंक विद योर टीयर 1 और द एसेट क्वालिटी, ठीक है। तो इस तरीके से वो डिफाइंड हो, उसमें मतलब कोई ऐसा किसी भी प्रकार का कोई ऐसा assumptions ना हो, दैट इज द वन, ठीक है। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी एल्को कंसिस्टिंग ऑफ बैंक टॉप मैनेजमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring adherence to risk tolerance limit set by board, जो पिछले उसमें सेट हुआ था, as well as implementing the liquidity risk management strategy of the bank in line with bank decided risk management objective and risk tolerance. So risk tolerance objective these get decided in the by the board of directors. तो इनका प्रॉपर ढंग से पालन हो, वो उसी तरीके से आपका चीजें हो रही हैं, that is generally make sure by the ELCO itself, ठीक है। इसके अलावा सपोर्ट ग्रुप्स आपका ALM support group consisting of operating staff should be responsible for analyzing, monitoring and responsible for liquidity risk profile to the ELCO। तो ये आपका ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे होते, ठीक है, कि जो हमने चीजें की हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कि जो एग्जैक्टनेस उन पॉलिसीज, प्रोसीजर्स या एक्शंस में है या नहीं है, ठीक है। एंड इफ देयर आर सम फीडबैक टू प्रोवाइड दोस, पास ऑन दोस फीडबैक टू ELCO, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सपोर्ट ग्रुप्स, ठीक है। So this group should also prepare forecast simulations showing the effect of various possible changes in market condition on the bank liquidity position and recommend action needed to be taken to maintain the liquidity position or either to the bank internal limits, ठीक है। साथ साथ में आपका जो करंट मार्केट सिचुएशन है और जो चेंजेस आपके हो रहे हैं उनको एनालिसिस करना एंड कहीं ना कहीं अपने रिसर्च को पास ऑन करना, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सपोर्ट ग्रुप्स, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस, तो इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। बैंक शुड हैव एन एक्सप्लिट लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस सेट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द रिस्क टॉलरेंस शुड डिफाइन द लेवल ऑफ लिक्विडिटी रिस्क that the bank willing to assume and should reflect the bank financial condition and funding capacity also, ठीक है। तो tolerance means like this is a limit जहां तक हम जा सकते हैं, एंड दैट टॉलरेंस विल, दैट लिमिट विल डिसाइड कि हाँ कितना रिस्की एसेट्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दैट इज द वन, ठीक है। स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, so the strategy for managing liquidity risk should be appropriate for the nature, scale and complexity of the bank activities. In formulating the strategy, bank or banking group should take into consideration legal structure of the country, key business line, the breadth and diversity of market,
product jurisdictions in which they operate and home as well as host regulatory requirements. So whenever we generally plan our liquidity risk management, so bank they generally or institution they generally take care about these particular elements. ठीक है, तो इन्हीं elements के हिसाब से they'll generally decide the things. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें आपका I found this particular page very very important one. ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इनको आपका I'll highlight the areas and you just go through these particular one for revision. ठीक है, so setting tolerance level and limits for liquidity risk. So bank management should set limit to ensure liquidity, and these limits should be reviewed by supervisors, means central banks. Alternatively, supervision may set other limit. It can be like in some countries, these are generally decided by the supervisor itself. Even in RBI also, in case of India, RBI also provides some areas कि कब कब आपका रिपोर्टिंग होना चाहिए या कब कब चीजें आपका होनी चाहिए, वो सारी चीजें. ठीक है, पहला क्या क्या एरियाज है आपका? अक्यूमुलेटिव कैश फ्लो मिसमैच. So the cumulative net funding requirement as a percentage of total liabilities over a particular period, next day, week, आपका fortnight, next month, next year, ये आपका जो कहीं ना कहीं NSFR से आपको हेल्प मिल जाएगा. These mismatch should be calculated by taking a conservative view of marketability of liquid asset with a discount to cover over volatility and any drop in price in the event of forced sales, and should include likely outflow as a result of drawdown of commitments. पहला. Second one is liquidity asset as percentage of short term liabilities. ठीक है, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है उसके अगेंस्ट में लिक्विड एसेट कितने हैं. ठीक है, सो आपके जैसे एलसीआर जो आपका हो सकता है बेहतर. ठीक है, 30 डेज के लिए अगर हम लोग बात करें, और इवन एनएसएफआर कैन आल्सो हेल्प अस. ठीक है, so these the asset included in this category should be those which are highly liquid. ठीक है, जिनको हम लोग highly liquid HQLA बोलते हैं. ठीक है, high liquid high quality liquid asset. ठीक है, only those assets which are just to be having a ready market even in period of stress. ठीक है, so तीसरा आपका limit on loan to deposit ratio. ठीक है, loan to deposit ratio should be defined. ठीक है, a limit on loan to capital ratio, a journal limit on relationship between anticipated funding needs and available source of meeting them. That is also known as, that is exactly known as NSFR, and it should be greater than equal to 100%. ठीक है, जैसे आपका ये किसके लिए था? आपका LCR के लिए. ठीक है, 6 is primary sources of for meeting funding need should be quantified. 7th is flexible limit on the percentage reliance on a particular liability category. 8th one is a limit on dependence of on individual customer or market segment. 9th is flexible limit of on the minimum or maximum average maturity of different categories of liabilities. 10th one is minimum liquidity provision to be maintained टू सस्टेन ऑपरेशंस. ओके, सो मतलब कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जिसमें हमारे ऑपरेशन को एज इट इज चलाने के लिए आपके पास फंडिंग्स होनी चाहिए. सो दीज आर द 10 पॉइंटर्स व्हिच आर जनरली फॉर द like bank they generally need to take care while they generally set their tolerance level and limit for the liquidity risk. Very very important one. So please go through these particular or do revise before entering to your examination hall. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. प्रिंसिपल, दिस वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर मॉड्यूल बी. सो देयर वर हाउ मेनी प्रिंसिपल? 13 प्रिंसिपल अबाउट द लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, आई होप याद होंगे. सो BCBS they generally come up with these set of principles just after the global financial crisis. They generally released these particular one in September 2008, September 2008, a set of 13 principles. ठीक है, जिसमें हमने आपका if you remember that contingency funding प्लान आपका है CFP, या फिर आपका डिस्क्लोजर्स है 13 नंबर प्रिंसिपल, 5 आपका रिस्क टॉलरेंस या अदर्स पॉलिसीज एंड ऑल. ठीक है, so after the global financial crisis, in recognition of the need for the bank to improve the liquidity risk management, BCBS published principle for sound liquidity risk management supervision in September 2008, and these are 13 principles. The board
द ब्रॉड प्रिंसिपल जो हमने आपका डिस्कस किए थे, मैनेजमेंट बाय बैंक इन्वेसेस बाय द बीसीबीएस आर अंडर द, जैसे हमने आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल द 13 प्रिंसिपल, बट हाँ जब हमने मॉड्यूल बी पढ़ा था ना, तो वहां पे ये पूरा 13 के 13 प्रिंसिपल्स को हमने काफी अच्छे से आपका या काफी डिटेल में आपका डी कोड किया था, ठीक है। चलो तो अब हम, तो प्लीज डू रिवाइज दोस पर्टिकुलर वन, ठीक। अगर मैं उन पे फिर से जाऊंगा इट विल टेक हाफ एन आवर एंड देयर इज नो पॉइंट बिकॉज इट इज 100% सेम, ठीक है। सो नाउ मेजरिंग आपका, मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, so we have two approaches, one is stock approach, another one is flow approach. In case of stock approach we have 7 ratios which are generally provided by RBI itself, ठीक है, जिन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ जैसे यहाँ पे है, so the guidelines on liquidity risk management by bank issued by RBI have given an illustrative list of 7 stock ratios, ठीक है, which are given in the this, ठीक है। These are critical ratios in the option or in the opinion of RBI in respect of liquidity risk management and carries signified for the bank. So ये आपका 7 ratios, ठीक है। जैसे आपका अगर हम लोग बात करें वॉलेटाइल लाइबिलिटीज माइनस टेम्परेरी एसेट डिवाइड बाय अर्निंग एसेट टेम्परेरी एसेट, कोर डिपॉजिट रेशियो आपका, कोर डिपॉजिट डिवाइड बाय टोटल एसेट वॉलेटाइल लाइबिलिटीज, लोन मैंडेटरी एसएलआर प्लस मैंडेटरी सीआरआर फिक्स्ड डिपॉजिट एंड ऑल, सो टोटल एसेट, ये हमने पढ़े हैं पास्ट में, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हम लोग उनको गो थ्रू करें। लोन प्लस मैंडेटरी एसएलआर प्लस मैंडेटरी सीआरआर प्लस फिक्स्ड एसेट डिवाइड बाय कोर डिपॉजिट टोटल एसेट कोर डिपॉजिट, ठीक है। टेम्परेरी एसेट डिवाइड बाय टोटल एसेट, टेम्परेरी एसेट डिवाइड बाय वॉलेटाइल लायबिलिटीज एंड वॉलेटाइल लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट, ठीक है। तो ये 7 रेशियोज आपका, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस वन एंड इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वी विल प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द कमिंग डेज, so like once we are done with this theoretical aspect ना, now only 2 units are remaining and I'll try कि जो बाकी के 2 यूनिट है ना वो कल के कल खत्म कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका, तो स्टॉक अप्रोच मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, so stock approach is based on label of asset and liabilities as well as off balance sheet exposures on a particular date. The following ratios are calculated to assess the liquidity position of a bank itself. These ratios are same जैसे भी हमने देखे थे पास्ट में, ठीक है। तो आपका रेशियो ऑफ कोर डिपॉजिट टू टोटल एसेट, ठीक है। सो आपका कोर डिपॉजिट डिवाइड बाय टोटल एसेट, ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट वन, ठीक है। कहाँ गया आपका कोर डिपॉजिट टू टोटल एसेट आपका, ठीक है। सो कोर रेशियो ऑफ कोर डिपॉजिट विच इज आपका कोर डिपॉजिट टू टोटल एसेट, ठीक है। सो कोर डिपॉजिट डिवाइड बाय टोटल एसेट, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा दिस इज लाइक प्लीज टेक इट एज अ होमवर्क, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, क्या पढ़ना है आपको, दिस लाइन, द हायर द रेशियो द बेटर इज बिकॉज डिपॉजिट आर ट्रीटेड to be a stable source of liquidity. Core deposit will constitute deposit from the public receive in the normal course of business, ठीक है। तो ये इनके ऊपर ना they'll give you statement for sure, ठीक है, ये सातों रेशियोज के ऊपर आपका, so please do take care about that one, ठीक है। जैसे net loan to total deposit ratio, so net loan divided by total deposit, it reflect the ratio of loan to public deposit or core deposit. Total loan in ratio represent net advances after deduction of provision for loan losses and interest suspense account. Loan is treated to be less liquid asset and therefore the lower ratio is better in that particular case, ठीक है। तो ये जो रेशियो के इम्प्लीकेशंस है ना आपका, उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेशियो ऑफ टर्म डिपॉजिट टू अ टोटल डिपॉजिट, सो term deposit provide a stable source of liquidity and a negligible volatility, so higher term ratio will be better. Ratio of volatile liabilities to total asset, so volatile liability this, so higher portion of volatile asset will cause higher problems, so आपका lower ratio will be better in that particular case. Ratio of short term liabilities to liquid asset, short term liability are required to be redeemed at the earliest, so there will be required ready liquid asset, ठीक है। so it describe lower one will be the like अगर ज्यादा होगा तो आपका ज्यादा देने पड़ेंगे, कम जितना रेशियो होगा, so that means we have the
प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंडिंग ऑल्सो. सो प्लीज 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 गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जब मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा सो आई विल डेफिनेटली इंक्लूड द क्वेश्चन, बट थोड़ा सा आप भी उसको ध्यान रखिएगा तो आपको हेल्प मिलेगी. ठीक है, flow approach, if you talk about the flow approach, so flow approach, the framework for assessing and managing bank liquidity through flow approach, three major areas. One is measuring and managing net funding requirements. So net funding requirements, तो आपका कितना कितना रिक्वायरमेंट्स एट विच लेवल, आपका ओवरनाइट या डे, आपका मंथली, वीकली, ईयरली, जो भी आपके हैं. मैनेजिंग मार्केट एक्सेस, ठीक है, कैसे कैसे हमारा डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑल, कंटिंजेंसी प्लानिंग. सो दीज आर दी थ्री एरियाज विच आर जनरली पार्ट ऑफ द फ्लो अप्रोच. ठीक है, सो लिक्विडिटी, ability to accommodate a decrease in the liability and fund increase, maturity letters, comparison of future cash inflows to future cash outflows over a series of specific time, alternative scenarios, evaluating whether a bank has significant liquid funds based on behavior of cash flow under different what if scenario, or that is also known as kind of simulation situations. ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन होगा तो क्या हमारे पास है, दैट वी जनरली यूज फॉर द स्ट्रेस टेस्टिंग itself. ठीक है, कि अगर हमारी ये सिचुएशन होती है तो कितना हम लोग प्रोटेक्टेड है, और अगर दूसरी सिचुएशन होगी तो कितना प्रोटेक्टेड है. ठीक है, देयर आर many three scenarios for a bank in connection with the management of liquidity risk. First one is general market condition as it is, जैसा अभी चल रहा है वैसे ही चलता है. ठीक है, दूसरा आपका बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस, आपका इंडिविजुअल, एंड तीसरा आपका जनरल मार्केट क्राइसिस. ठीक है, तो ये तीन एरियाज आपका विच जनरली हेल्प अस टू इवैल्यूएट दिस लास्ट पॉइंट विच इज अल्टरनेटिव सिनेरियो एनालिसिस. ठीक है, तो आप एक तो जनरल आपका मार्केट कंडीशन रहती है, दूसरा बैंक टू बैंक वेरी जो करेगा, और तीसरा आपका इन जनरल अगर कोई ऐसे क्राइसिस होती है. ठीक है, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस फॉर मैच्योरिटी बकेट्स. Again, this is important one. So Reserve Bank of India has given a framework for bucket wise classification of assets and liabilities to be followed by Indian banks while preparing the structural liquidity statement. These are guidelines factors for the banks. All the assets and liabilities are classified into फॉलोइंग टाइम बकेट्स. तो जो आपका रिपोर्टिंग होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे टुमारो 2 to 7 days, like even like bank while they are testing their own liquidity position also, so they can have these kind of things. So tomorrow आपका to do this 8 to 14 days, 15 to 30 days, 31 to 2 months, 2 months to 3 months, over 3 months to 6 months, आपका 6 month to 1 year, आपका 1 year to 3 years, 3 year to 5 years और over 5 years. ठीक है, तो ये आपका आरबीआई के द्वारा काइंड ऑफ सजेस्टेड वन कि बैंक while they check their overall liquidity management and all, so they should have this kind of structure. They should divide the overall buckets or their liquidity position among these different areas or among these different buckets. Okay, so this is it. तो ये आपका liquidity risk management. यहाँ पे कुछ पार्ट आपका जो हमने रेफरेंस लिया है फ्रॉम दी मॉड्यूल भी लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट वाला एरिया से, जैसे प्रिंसिपल. अदरवाइज आई हैव इंक्लूडेड द मैक्सिमम पोर्शन. इवन आपकी जो बुक है मतलब जहाँ पे अगर आप मैकमिलन का बुक भी स्टडी करोगे तो वहाँ पे भी उसने रेफरेंस ही दिया उन 13 प्रिंसिपल का. ठीक है, so for the further clearance you can have the look on that particular one and all इस तरीके से. बट 13 प्रिंसिपल को अगर हम दोबारा से रिपीट करेंगे इट विल टेक हाफ एन आवर, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा. ठीक है, सो देयर इज नो पॉइंट. आई एम बिलीविंग दैट कि आपने मॉड्यूल ए आपका ए और बी बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ. ठीक है, अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, टू थिंग्स आई वुड लाइक टू एडवाइस. वन इज डू नॉट अपेयर विदाउट द फाउंडेशन थिंग्स एंड ऑल. ठीक है, देखो यार ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, सो मैंने कंपाइलेशन, अगर आपके पास जैसे आपने ऑलरेडी फंडामेंटल पढ़े हैं, कुछ टॉपिक में इशू हो रहा है तो जस्ट गो विद दैट टॉपिक वाइज. ठीक है, जो जो टॉपिक हैं प्रॉब्लम करें उसमें जाओ. और अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है किस में आपका आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो एक मॉड्यूल एक दिन का टारगेट लेके चलो, 2x की स्पीड में दौड़ा करके एक बार उसको जरूर पढ़ो, सुनो, सिर्फ सुनो तब एटलीस्ट तो चीजें ना आप रिकॉल होंगी. ठीक है, देखो सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम तक याद रखना. ठीक है, मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि लाइक एग्जाम आपका जब तक देते नहीं हो ना तब तक उन चीजों को बिल्कुल दिमाग में पकड़ के रखो, उसके बाद सब छोड़ देना, चल जाएगा. ठीक है, बट वहां तक आपको रखना पड़ेगा. बट विदाउट फंडामेंटल्स गाइस थोड़ा सा टफ टास्क हो जाएगा.
जो लोग भी अभी ना सिर्फ क्वेरी क्वेश्चन के अकाउंट क्वेरी करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि ऐसा ही खाली क्वेश्चन वाला गेम नहीं है, दिस इज नॉट जीआईबी एग्जाम। तो ये आपका सीआईबी है, यहाँ पे बिना फंडामेंटल्स के आपका प्रॉब्लम होगी। हालांकि लास्ट ईयर जो लास्ट सेशन का पेपर था दैट वाज एट इजियर साइड, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो लकी थे, मे बी आप भी लकी हो, आई विश कि आप भी लकी हो, ठीक है, बट हमें ना मतलब लक के भरोसे ज्यादा नहीं बैठना, ठीक है। क्या बताओ आपके भरोसे बैठो, बोल देना सिद्दीकी साहब। चलो, तो ये आपका ग्रुप है, आई विल शेयर द पीडीएफ ऑल्सो। सो 2 टॉपिक आर रिमेनिंग, आई ट्राई कि कल मैं दोनों टॉपिक खत्म कर लूं, और देन आई विल प्रोवाइड द कंपाइलेशन फॉर मॉड्यूल डी ऑल्सो, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एमसीक्यू थिंग्स, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, प्लीज डू शेयर योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन, and if you like, please do share with your friends so other can also take advantages of these particular videos. So I'll see you tomorrow, guys, with the remaining units. So this is it from my side. Thank you for joining this session. Bye bye, take care all, have a nice day. Thank you.